లోక్సభ సమావేశాలు జరుగుతున్నాయి. ఇప్పుడు లైవ్ చూద్దాం. Who used to attack my sister and me all the time. So we were very scared of going out into the garden at night. We were scared of the dog. One day my grandmother somehow found out about this. And I'm saying this because this was one of the most powerful lessons taught to me in my life by a woman, a grandmother. And my parents had gone out for dinner, and she came, she caught my hand, I still remember, and she took me out into the garden. Dark garden at night, no lights. No, government houses have big gardens, quite a big garden. And she took me there, and she left me, she said, now you stay here, don't move. And she left. And I watched my grandmother, I remember she was wearing a yellowish sari, I watched her go away. और मेरी मतलब हवा निकल गई कि मतलब आज तो मैं गया. I didn't have the courage to tell my grandmother that, you know, I don't want to stay here, so I stayed. And she went away. She went away probably for 1 or 2 minutes. But for me it was like 2-3 hours. I was imagining the dog coming to bite me. I was imagining ghosts. I was imagining snakes. I was imagining everything. And then after some time, I remember my legs were even shaking a little bit, and then I saw my grandmother come. And she came and she asked me, so, what are you scared of? So I said, you know, Dadi, I'm scared of that dog. I don't know that he might come and bite me. I'm scared of somebody being in the garden that I don't know. I'm scared of bats. I'm scared of snakes. I'm scared of things I can't see. And she says, no, Rahul, you're not scared of all those things. You're not scared of the darkness. You're not scared of the dog. You're not scared of the bats. You're only scared of your mind. You're only scared of your imagination and what you are thinking. And then she said that, you know, you should not be scared of the darkness, because the truth most often is in the darkness. And if you do not have the courage to face your fear, you do not have the courage to go into darkness, you will not be able to understand the truth. You will not be able to fight for the truth. This is one of the biggest lessons in my life. I use it, it's a political lesson. I didn't realize then. Now as I get older, I realize it was not only a political lesson, more fundamentally it was a religious lesson. I didn't understand then, and what she was saying to me was that Satyam Shivam Sundaram. That's what she was saying. She said that I want you to be able to go into the darkness. I want you to be able to go where you're scared. And I want you to see what the truth looks like. And later I realized, my God, by taking me into the garden, she was explaining Shiva to me. She was explaining the central tenet of our religion. She was explaining Satya to me. And in many ways, she was explaining Ahimsa to me. And she said to me, I remember that, listen, truth is painful sometimes. Don't worry about it. Deal with it. And there are some truths that need to be told here today in this house. The first truth is that this is not a women's bill. This is nothing to do with the empowerment of women. There is a women's bill. It was passed in 2023 in this house itself.
And my friends and teachers in the BJP said that it will be implemented in 10 years' time. That is the women's bill. This is an attempt to change the electoral map of India. Using and hiding behind India's women. And actually it is a shameful act. Because instead of giving them women's reservation, which is very easy to do, and every single opposition person will support it right now, bring that old bill back right now, and we will help you pass it for implementation from this second. Now, that is the women's bill. This is something else. And the truth needs to be told about what this is. There is a central truth in India's history, in India's past and present. And I have become more and more aware of this truth. And that is the brutal, cruel, unforgiving treatment of the OBC community, of the Dalit community, and other communities, minorities and women. And this is a historical fact. This need not be argued here. Everybody knows how Indian society treated OBCs, treated Dalits, what was done to them, what was done to their women, what they were allowed to do, what they were not allowed to do, how they were blinded when they read certain documents, how metal was poured into their ears when they heard certain verses. This is a fact. Now, what is being attempted here is a bypass of the caste census. What they are trying to do is they are trying to avoid giving power, giving representation to my OBC brothers and sisters, and to take away power from them. This is the agenda over here. That's the first agenda. Manuvad over Samvidhan. Amit Shah ji says that the caste census has begun. And he repeated twice yesterday, trying to be clever, saying that houses don't have castes. The point is not whether houses have castes or don't have castes. The point is whether the caste census is going to be used for representation in Parliament, Vidhan Sabha, Lok Sabha. And what you're trying to do now is trying to make sure that caste census has nothing to do with representation for the next 10 years, 15 years, so that you can kick the ball down the street. That's the first thing that is being done. Second thing that is being done, equally bad thing, but a very dangerous thing. What you're doing, because you're scared of what is happening in the politics of this country, you're scared of the erosion of your strength, you're trying to rejig the Indian political map. You have done it in Assam, you've done it in Jammu and Kashmir, and now you're imagining that you can do it in India. And you need a constitutional amendment to do that. Now let me explain what you are doing. You are telling the South Indian states, you are telling the northeastern states, you are telling small states in India
that in order for the BJP to remain in power, we are going to take away representation from you. This is nothing short of an anti-national act. This is what you are doing. And under no circumstances are we going to allow you to do it. So I am telling you very clearly right now that the entire opposition is going to defeat this attempt of yours to attack the nation state and deprive OBCs and Dalits of their rightful place in society. I want to ask, corporate India, entire financial structure of India, where are the Dalits? Where are the OBCs? Where are the Adivasis? Top bureaucracy of this country. आपका गलती है. Where are they? Judiciary, private sector, private hospital sector, healthcare sector, education sector. Earlier, there used to be something called the public sector. Public sector provided space for Dalits, OBCs. You've removed it, demolished it, handed it over to your friends. So you call OBCs Hindus, you call Dalits Hindus, but you do not give them any space in the power structure of this country. And you can ask this to any Dalit, you can ask it to any OBC. This is a fact. You call them Hindus, but you do not give them any place in this country. And you are सच्चाई अच्छी नहीं लगती आपको. You after you can reply. I'm not yielding. I'm not yielding. I'm asking you. Don't ask. I'm not yielding. You have made a Because, sir, I'm wrong, not yielding. misleading statement. I have to make clarification. Because, sir, I'm not yielding. But, sir, Sri Rahul Gandhi ji is talking about reservation in assemblies and parliament for OBC and for religious minorities. That is not permissible. When Congress ruled this country for more than 60 years, why did not Congress party provide that constitutional reservation for OBC? Congress has to answer. राजीव गांधी जी ने ऑन रिकॉर्ड OBC रिजर्वेशन का विरोध किया था. राजीव गांधी जी ने जब प्रधानमंत्री थे और जब प्रधानमंत्री नहीं थे तो भी उन्होंने OBC का रिजर्वेशन अपोज उस समय का प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने किया था. राहुल गांधी जी उसका जवाब दे सकते हैं कि राजीव गांधी जी ने क्यों अपोज किया था OBC रिजर्वेशन. So I want to assure my friends, brothers and sisters across the country, southern states, smaller states, northeastern states, that do not worry. We are not going to allow them. We are not going to allow them to attack the Union of India. You are equal participants in the Union of India. They will not dare to touch your representation in the Union of India. Speaker, sir, this same question was faced by Indira Gandhi ji and also by Mr. Vajpayee. Both of them faced this question.
They understood the dangers and they did not take the action the Prime Minister is taking. You can check. It was done by Indira Gandhi ji and it was done by Mr. Vajpayee. I am going to explain later in the speech why Mr. Modi is doing it. Then you can have your answer. Wait. It's coming. Now, it's loading. Exactly. Now let me go back again to my childhood. मैंने किसी को बोलने से टोका क्या? सर बोलने तो दीजिए. बस सदन की मर्यादा तो बनाए रखनी पड़ेगी ना. What am I doing? ये देश का सर्वोच्च संस्था है. आप प्रतिपक्ष के नेता हैं. आप चेयर को एड्रेस कर लें. सर उसके बाद क्या हुआ? सर उसके बाद बड़ी इंटरेस्टिंग बात हुई. हो गया सर, खत्म. हम सब समझ रहे हैं. सर उसके बाद क्या हुआ? प्लीज बैठिए. सदन की मर्यादा बाहर से भंग हो रही है. वो मर्यादा वहां भी टोक रहे हैं. प्लीज. हमारे यहाँ से सर मेरा अनुरोध है कि आपने बात का हम भी चाहते हैं कि हमारे यहाँ से डिस्टर्ब ना करें और आपके यहाँ से भी ना करें. बस नेता प्रतिपक्ष से इतना रिक्वेस्ट है कि आप लीडर ऑफ अपोजिशन है, आपका टाइम हम रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते. चेयरमैन आपको टाइम दिए मगर आप पृष्ठभूमि ज्यादा लंबा मत बनाइए और हमारे यहाँ भी हम डिस्टर्ब नहीं करने के लिए हम कहते हैं. स्पीकर सर हुआ क्या सर? अब खत्म हो गई कहानी सर. जादू वाली कहानी खत्म. सर उसमें हुआ क्या? वो जैसे ही वो फंस गया और वो उसके ऊपर से वो उतारा और उसकी चेन हिली नहीं, हटी नहीं थी, तो उसके बाद बच्चे हंसने लग गए. अब वो कुछ भी करे, मतलब उसने 2-3 और ट्रिक्स ट्राई की. बॉल वाली ट्रिक ट्राई की, बच्चे हंसे. फिर उसने फिर से मतलब कुछ और खरगोश के साथ कोशिश की, सारे हंसने लगे. ऐसा हुआ कि बेचारा मतलब कोई भी ट्रिक करे उसके बाद बच्चे बस हंसते ही गए, हंसते ही गए, हंसते ही गए. मतलब जो उसका जो पूरा जो जादू का ढांचा था ना, वो भड़ाक से खत्म हो गया. सर हुआ क्या? अब इंटरेस्टिंग बात थी सर. उस टाइम तो मैं बहुत हंसा, सब हंसे सर, मगर उसके बाद मुझे पता लगा कि हुआ क्या था. सीरियस बात हुई थी. वो जो जादूगर था उसको बीमारी थी और वो बहुत टेंशन में था और वो दबाव में आ गया और उसने एक मैजिक ट्रिक गलत कर दी, वो निकल नहीं पाया, वहीं खत्म हो गया सर. सर हंस लीजिए सर, प्लीज सर. तरीका है क्या? आप सदन में इसी तरीके की चर्चा करना चाहते हैं क्या? सर क्या खत्म सर. इतने बड़ा दल है आपका. आप विधेयक पर बोले. ओके सर, कंक्लूड करते हैं सर. तो सर हुआ क्या? वो टेंशन में आया, एक गलती की उसने और उसके बाद उसका जादू नहीं चला और शायद उसके बाद वो जादू कर ही नहीं पाया, मुझे लगता है. सर मैं आपको वापस गार्डन ले जाना चाहता हूं. तो मेरी दादी ने उस टाइम एक और बात बोली थी मुझसे. दादी ने गार्डन में मुझे एक और बात समझाई थी जो मैंने पहले नहीं बोली. उन्होंने कहा था, स्पीकर सर बोलूं? मैं
आपको पहले भी आग्रह किया है, मैं कभी किसी सर मुझे दादी ने उस टाइम एक और बात बोली थी. शी सेड टू मी दैट लिसन राहुल, आई वांट यू टू बी एबल टू सी इन द डार्क. I want you to be able to see in the dark. Like the central idea of Shiva. Central idea of Shiva, I will explain to my brothers and sisters, is to see in the dark. See what others cannot see. See your fears. Go close to your fears. That is the central idea of Shiva. She was telling me that and she said, I want you to see in the dark. I said, Dadi, why? She said, because Rahul, real strength always hides in the dark. Real power, real strength hides in the darkness. Fantastic political lesson. First, look for your truth, stick by it, and second, real power, real strength always hides. It never shows itself. जो असली ताकत होती है वो छुप के काम करती है, वो अपने आप को दिखाती कभी नहीं है. अब मैं ये आपको बता क्यों रहा हूं? बिकॉज देर इज, एवरीबडी नोज, a partnership between our friend the magician and the businessman. ये तो तरीका ठीक नहीं है. नाम नहीं लिया सर. सर मैजिशियन बोला है सर. I said magician. No. Sir, I said magician. I didn't even say here. माननीय आप प्रतिपक्ष के नेता हैं. बोलना दीजिए सर. मैं आपको मैंने संसद की गलती गरिमा क्या की से बोलने देने का अधिकार है, लेकिन संसद की गरिमा बनाए रखना भी मेरी जिम्मेदारी है. सर द प्रॉब्लम इज, नहीं, ये खत्म करता हूं, सर. उचित नहीं है. सर आई विल फिनिश सर. नहीं, अनपार्लियामेंट नहीं है, पर ये संसद है. ऐसा नहीं है कि आप जो चौराहे पे बोलो संसद में बोलोगे. संसद की अपनी मर्यादा गरिमा होती है. सर let me, I'll finish. Speaker sir, what has happened? There is a partnership and then there is a hidden power. Massive, extremely strong, but completely hidden. Okay? And that power, that force, that does not show itself, but is there, knows the entire history of the magician. It knows every single detail about the magician from when he first came into politics till when he arrived as Prime Minister. And it is using that information. ना, ये तो It is using the information to shape. नो, नो. देखिए, मैं आपको फिर कह रहा हूं राहुल गांधी जी, क्या बोल रहा हूं सर? आप नो नहीं, वेणुगोपाल जी, ये उचित नहीं है. Don't disturb us, sir. मैं Let them reply, disturbance- sir. Home Minister is going to reply. मैं आपको बताऊं, होम मिनिस्टर साहब भी बोलते हैं, विधेयक पे बोलते हैं. जो भी बोलता है विधेयक पे बोलता है. आप भी बोले हमने किसी को टोका नहीं. प्रियंका जी बोला हमने कोई टोका किसी को. लेकिन सदन की गरिमा मर्यादा बनाने की जिम्मेदारी तो अध्यक्ष की है ना. नो, विधेयक में सर बोलने तो दीजिए सर. बोलने दे रहा हूं ना मैं आपको. नहीं विधेयक बोलने में दीजिए बोलिए. सर. दिस एक्शन, ओके स्पीकर सर, आई वो उधर जाऊंगा नहीं सर. सर दिस एक्शन, प्लीज अंडरस्टैंड व्हाट हैज हैपेंड हियर. इट इज इंपॉर्टेंट दैट एवरीवन अंडरस्टैंड्स. द बीजेपी न्यू
that he is जिन शब्दों का इन्होंने प्रयोग किया उसे सदन की कार्रवाई से बाहर निकाला जाना चाहिए और राहुल गांधी को क्षमा मांगनी चाहिए देशवासियों नहीं। श्रीमान राहुल गांधी जी का भाषण देने में हम आपत्ति नहीं करना चाहते थे, हम पूरा सुनना चाहते थे। तो राहुल गांधी जी ने जैसे ऑपरेशन सिंदूर को जादू किया है बोलता है, बालाकोट स्ट्राइक हमारे वीर जवानों ने जो कार्रवाई किया उसको मजाक उड़ा रहे हैं। 140 करोड़ भारतीयों ने प्रधानमंत्री बनाया, उसको वो जादू कहते हैं। ये कोई तरीका है? और वैसे सर रक्षा मंत्री जी ने भी कहा है, हम भी कह रहे हैं, आपने कई बार डायरेक्शन दिया है कि आप भाषण कीजिए मगर नियम के तहत भाषण कीजिए। हम शांति से सुन रहे थे, आप बार बार प्रधानमंत्री को जिस नाम से लेकर के आप मजाक उड़ा रहे हैं, ये देश का मजाक है। प्रधानमंत्री देश का होता है, प्रधानमंत्री सिर्फ आपका मेरा नहीं है। इसलिए कार्रवाई से आपका आपत्तिजनक शब्दों को हटा दिया जाए और स्पीकर के डायरेक्शन को आप मानना चाहिए। और हम लोग सब आज विशेष बिल को लेकर के चर्चा कर रहे हैं, उस पर आप बोलिए, हम उसको रोकने का हमारे अधिकार नहीं है, मगर तरीका से भाषण होना चाहिए। और आप तो नेता प्रतिपक्ष है, आपसे लोग सीखना चाहिए। आपके पार्टी में नए नए एमपी आए हैं, वो क्या सीखेंगे? नेता ही ऐसा व्यवहार करेंगे तो। देखिए माननीय राहुल गांधी जी, मेरी इसमें आपत्ति, मैंने ऐसी सब चीजें रिकॉर्ड से निकाल दी है, मेरी इसमें घोर आपत्ति है। मैं सदन के आसन से भी बोल रहा हूं कि आप जो विधेयक है उस विधेयक पर बोले, आप विधेयक पर बोले, विधेयक से इधर उधर नहीं बोले। I mean, come on, I need to go. I need to go. आप ऐसे नहीं करें। Speaker, sir. Sir, there is a central confusion in the mind of the BJP. अरे सर कितने बार उठेंगे सर? ये सदन का बेनिफिट के लिए सर, ये सदन का बेनिफिट के लिए मैं बता रहा हूँ, ये रूल्स में जो की वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन जो अनपार्लियामेंट्री है, इवन मैजिशियन रेफर टू द मिनिस्टर इज ऑल्सो अनपार्लियामेंट्री। ये रूल है और रूल को तो मानना पड़ेगा। मैं आपको रूल का किताब भेज देता हूँ, आप भी देख लीजिए। अनपार्लियामेंट्री एक्सप्रेशन ये हमने नहीं बनाया, ये अनपार्लियामेंट्री एक्सप्रेशन आपके समय का किताब है और आप उसको मानते नहीं है क्या? पढ़ते नहीं है। नहीं, आप एक मिनट राहुल जी, आप बैठिए, एक मिनट बैठिए, आप एक मिनट बैठिए, एक मिनट बैठिए आप। मैं कभी सदन में किसी मान्य विषय को, माननीय सदस्य चाहे किसी भी दल का हो, कभी भी मैंने आपत्ति नहीं करता, लेकिन मेरा सदन के सभी सदस्यों से आग्रह है, सब माननीय सदस्य चाहे एक भी दल का सदस्य वह भी सम्मानीय है। हमारी भाषा संयमित होनी चाहिए, मर्यादित होनी चाहिए, आचरणपूर्ण होनी चाहिए।
Speaker sir, there is a central confusion, and I have to put this right. There is a central fundamental confusion in the minds of the BJP and its leadership. And the confusion is that they think they are the people of India. You are not the people of India. The people of India are something else. They also think that they are the armed forces. You are not the armed forces. The armed forces are something else. You are a political organization. You are not India, and you are not the armed forces of India. We are not attacking the people of India. We are not attacking the armed forces of India. We are attacking you. Do not hide behind the people of India or behind the armed forces. So stop hiding like cowards behind the armed forces and behind the people. Come out and talk to us and have a discussion with us. Now, going back to my speech, Speaker sir. As I said, the magician has been caught. प्लीज नो, मैं ऐसे शब्दों का उपयोग इस सदन में नहीं करने दूंगा, चाहे सत्ता पक्ष सहमत हो। वो नहीं बोल रहे सत्ता पक्ष वाले, पर मैं उपयोग नहीं करने दूंगा। ठीक है, आप अगर नहीं मानते हैं तो मैं ऐसे शब्दों का उपयोग, ऐसी भाषा का अलाउ नहीं करूंगा। नो, आप दादा कैसी भाषा का उपयोग करना चाहते हैं? यहाँ पर आप कौन सी भाषा का उपयोग करना चाहते हैं? ये दुनिया की सबसे बड़ी संसद है, सर्वोच्च संस्था है, इसकी भाषा संयमित होना ही चाहिए ना। आप बोलिए, अगर आप मैं बोलता हूँ मैं बोलता हूँ विषय पे बोलेंगे म्यूजिशियन नहीं तो मैं बोलूंगा। आपको अलाउ करूंगा। सर मैजिशियन नहीं बोलूंगा। आप विषय पे बोलेंगे तो मैं अलाउ करूंगा। मैं जादूगर नहीं बोलूंगा सर। आप विषय पे सर जादूगर शब्द नहीं यूज करूंगा। सर the individual in my story, sir, what happened was, the last session of Parliament completely destroyed the structure, because a deal was signed with the United States that under no circumstances would have been signed by any prime minister of this country unless he was compromised. ये दिए So, क्या सर? ये विधेयक का विषय है क्या? नो, अगर मैं सीट पे बैठा हूं तो कुमार स्वामी जी हो या कोई भी हो, मैं विधेयक के पास बोलने दें। नो, मैं सीट पे बैठूंगा तो विधेयक पर ही बात होगी। हाँ, विधेयक पर ही बात होगी। हाँ, मैं जब आसन पे हूं तो विधेयक पर ही चर्चा होगी। विधेयक के विषय पर आप बोले, मैंने रोका नहीं। विधेयक के विषय पे मैंने कभी नहीं टोका न रोका। विषय पे मैंने कभी नहीं रोका। आपको रोका गया, किसी को रोका के विषय पर? नो। And I was like, my God, how crazy. That's the number. 16. This 16 number. This is the number. The whole answer to the riddle is in the number 16. Everything is in the number 16. Now, if anybody understands what I'm saying, please send me a message. And on Twitter, you can tell what it is. But the answer to your problems, and you're going to find out very soon, is in the number 16. Thank you, sir. श्री निशिकांत दुबे, धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। पिछले 2 दिन से अध्यक्ष महोदय इस पार्लियामेंट में सुन के जाओ, लगातार बैठकर
नियम में। किस नियम में? किस नियम में? सर ये नियम कहता है कि जिस व्यक्ति ने अपना भाषण समाप्त किया हो अगले भाषण तक उसको सदन में रुकना है। बार बार राहुल गांधी जी भाषण देते हैं और यहाँ से भाग लेते हैं और सुनने के लिए कभी तैयार नहीं रहते। सर ये असत्य बोल के यहाँ पे जाते हैं और उसके बाद यहाँ से भाग खड़े होते हैं। श्री निशिकांत दुबे जी, बोलो। निशिकांत जी कृपया सभापति महोदय, एक मिनट मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, सुप्रिया जी सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सब लोग बैठ जाएं। अगर किसी को बाहर जाना चले जाएं, बट आई थिंक सो हाउस मस्ट बी इन ऑर्डर। तो जस्ट आई रिक्वेस्ट टू एवरीबडी, प्लीज काइंडली जस्ट ऑक्यूपाई योर सीट, काइंडली टेक योर सीट, खड़े मत रहिए। धन्यवाद। श्री सभापति महोदय, कृपया पिछले 2 दिन से लगातार हमारी पूरी पार्टी माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में माताओं को अधिकार देने के लिए, बहनों को अधिकार देने के लिए, दलित, शोषित, वंचित, पिछड़ों को अधिकार देने के लिए 33% रिजर्वेशन के लिए चिंतित है। रात 1:30 बजे तक पूरे संसद के सदस्य और खासकर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के सदस्य यहां लगातार जमे हुए थे। और मैं जब आज यहां आया तो मुझे लगा कि कांग्रेस के जो लीडर ऑफ द अपोजिशन है उनसे जो है माताओं और बहनों के लिए कुछ सुनने को मिलेगा। उन्होंने जब भाषण शुरू किया और जब खत्म किया सर, तो मुझे लगा कि मैंने पीसी सरकार का जादू शो देख लिया या माइकल जैक्सन का मैंने डांस देख लिया। मैं कंफ्यूज हूं सर कि वो पीसी सरकार थे या माइकल जैक्सन थे। लेकिन फिर मुझे याद आया सर कि आज कौन सा तारीख है? आज 17 अप्रैल है और पूरे सदन के लिए और पूरे देश के लिए आज 17 अप्रैल को 2 घटना हुई सर। 17 अप्रैल 1987 को पहली बार राजीव गांधी जी के ऊपर बोफोर्स के कमीशन खोरी का आरोप लगा और यहां के फ्रंट पेज पर चला। 17 अप्रैल वो दिन था सर, 17 अप्रैल 1998 वो दिन था जिस ओबीसी की ये बात कर रहे हैं, सीताराम केसरी का धोती खोलकर सोनिया गांधी जी कांग्रेस की अध्यक्ष हो गई। और 17 अप्रैल 1999 वो दिन था जिस दिन कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार को जबरदस्ती क्रिश्चियन लॉबी के दबाव में गिरधर गमांग को वोट दिलाकर यही इस्तीफा दिला के दिया गया। यह 17 अप्रैल है सर, और इसीलिए उनका पीसी सरकार और माइकल जैक्सन होना लाजमी है। दूसरा सर, 543 की बहुत बात हो रही है, यह संविधान से चलता है ये देश सर। सबसे पहले मैं कास्ट सेंसस पर आ जाऊं। आजकल रोज कह रहे हैं सर कि कौन दलित है, कौन पिछड़ा है, कौन आदिवासी है। सर इस देश में सबसे यदि मजबूत कोई बिजनेसमैन है जिसकी की बहुत इज्जत है तो वो टाटा परिवार है। और राहुल गांधी जी को यही नहीं पता कि टाटा माइनॉरिटी है। वेदांता के मालिक अनिल अग्रवाल जी ओबीसी हैं। सुजलान के मालिक तुलसी ताती शेड्यूल कास्ट। और मैं आपको बता दूं सर कि बहुत बड़ा ग्रुप है माइकल सेन, उसका जो सीईओ है वो अरुण उरांव आदिवासी। जिसको जो अपॉर्चुनिटी मिली इस अपॉर्चुनिटी में काम किया। लेकिन आपने क्या किया? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में आपने अभी बात की है, ओबीसी रिजर्वेशन की बात हो रही है ना, रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन। ओबीसी को संवैधानिक अधिकार हमारे प्रधानमंत्री ने दिया। आप मांग रहे हो, आपका डिमांड क्या है? सारे अपोजिशन के लोगों ने, अखिलेश यादव जी से लेकर सारे लोगों ने कहा कि ओबीसी महिलाओं को रिजर्वेशन चाहिए। इसी ओबीसी रिजर्वेशन के लिए 2010 में जब राज्यसभा में यह कानून पास हो रहा था
तो जो सदन के नेता थे प्रणब मुखर्जी साहब और जो उस वक्त के तत्कालीन प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह जी, उनका स्टेटमेंट लेकर आया हूं मैं। उन्होंने कहा कि मरते दम तक कांग्रेस किसी ओबीसी में महिला को रिजर्वेशन नहीं दे सकती। इसी शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के प्रमोशन के रिजर्वेशन के लिए जब इसी लोकसभा में कानून आया तो समाजवादी पार्टी के, सुनिएगा अखिलेश जी, आपके सांसद यशवीर सिंह जो शेड्यूल कास्ट थे, उनको इसी वेल में मैडम सोनिया गांधी ने पीटा। आप आदिवासी की बात करते हो, शेड्यूल कास्ट की बात करते हो, किस तरह की बात कर रहे हो? और 2011 में जब जातिगत जनगणना के आधार पर, ठीक है, बोलिए अखिलेश जी। ये अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय, समाजवादी पार्टी का हमेशा पक्ष रहा है कि महिला आरक्षण के हम पक्ष में, पहली बात। दूसरा, हम पार्टी के अनुसार चाहते हैं आरक्षण। तीसरा, हम जाति जनगणना चाहते हैं। आप इस सदन में कहिए कि जाति जनगणना करेंगे और कब तक करेंगे, और क्या ओबीसी महिलाओं को आप शामिल करोगे कि नहीं करोगे? सभापति महोदय, अखिलेश अभी तो भाषण चल रहा है, आपको क्लैरिफिकेशन मांगना है होम मिनिस्टर साहब का। जब प्रॉपर रिप्लाई होगा तब आ जाएंगे, अभी भाषण होने दीजिए। सभापति महोदय, मेरा निवेदन है कि बहुत ज्यादा इतिहास के पन्ने न पलटें। ये तो वो बता रहे हैं जो आपने सांसद के साथ हुआ। हम जिस भूल गए थे, याद तो दिलाना पड़ेगा। हम जिस संस्कार को मानने वाले लोग हैं वो एक मंत्र पढ़ते हैं, ओम सहना भवतु सहना भुनक्तु सहवीर्यं करवावहे तेजस्विनामधितमस्तु मा विद्विषावहे। हमारे लिए शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, फॉरवर्ड, बैकवर्ड सब बराबर है। हम उसके सबके कल्याण के लिए काम करते हैं। मैं सभापति महोदय बताना चाह रहा था, इसी 2011 में जब जनगणना स्टार्ट हुई, जिसका कि ये बेस ईयर है, उसके लिए मुलायम सिंह यादव जी, अखिलेश जी मुख्यमंत्री बनकर चले गए थे। लालू प्रसाद जी, मुलायम सिंह यादव जी और हमारे पार्टी से गोपीनाथ मुंडे जी, हम लगातार जातिगत जनगणना की बात करते रहे, लगातार इस पार्लियामेंट को ठप करते रहे। और उसमें सोनिया गांधी जी का बयान है, प्रणब मुखर्जी जी का बयान है, मनमोहन सिंह जी का बयान है, चिदम्बरम जी का बयान है। ये 4 बयान लेकर मैं आया हूं और उन चारों ने कहा कि ये जातिगत जनगणना की। अच्छा, एक मिनट अखिलेश जी क्या कह रहे हैं? ये जो निशिकांत जी, अखिलेश जी, सभापति महोदय सब लोग श्लोक पढ़ रहे हैं। नहीं, बात सुनिए, लोग बैठ जाए और लोग बिठा दिए, सबको बिठाइए तब मैं आपको अलाउ करूंगा ना। आप सब लोग बैठ जाए, मैं आपको अलाउ कर रहा हूँ, उनको मैंने बिठा दिया। आप लोग बैठ जाए तब मैं आपके नेता को अलाउ करूंगा। अगर आप नहीं बैठेंगे तो मैं निशिकांत जी को खड़ा करूंगा, आपको अलाउ करूंगा। लेकिन बैठ जाए, अवधेश जी आप बैठ जाइए, आप सभी, बीरेन जी आप बैठ जाइए, बीरेन जी बैठ जाइए, सभी लोग बैठ जाइए, सरोज जी बैठ जाइए। मैं आपको समय दे रहा हूँ, नहीं मैं आपको समय दे रहा हूँ। एक मिनट, हाउस को इन ऑर्डर कर लीजिए। महोदय, मैंने उनका श्लोक सुना, श्लोक पे मैं कहना चाहता हूँ। बोलिए। सभापति महोदय, विवाद की बात नहीं है, संवाद की बात हो रही है। कोई बात माननीय सदस्य ने कहा, मैंने जवाब दिया, माननीय सदस्य ने श्लोक पढ़ा। उस श्लोक पे मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। मैं अपने संसदीय क्षेत्र में कन्नौज में एक मंदिर में गया था, लेकिन मेरे बाद वो मंदिर गंगा जल से धुलवाया गया था। आप बताइए क्यों धुलवाया? अब जिसने भी गंगा जल से धुलवाया उसने गलत काम किया और वो सभी अपराधी हैं और उनके ऊपर अपराध की सजा चलनी चाहिए, कानून के हिसाब से उनका न्याय होना चाहिए। अब आपकी बात आ गई। निशिकांत जी, मैं ये कह रहा था सभापति महोदय, आप कान पकड़कर हमसे माफी मांगोगे, मैं कान पकड़कर भी माफी मांग लूंगा। मैंने तो गंगा जल से नहीं धुलवाया है, जिसने भी गंगा जल से धुलवाया उसने गलत काम किया है। हमारा इससे क्या संबंध है?
अपराधी अपराधी है, चाहे किसी भी जाति धर्म वर्ग संप्रदाय का व्यक्ति यदि अपराधी है तो अपराधी है और उसको कानून के हिसाब से सजा मिलनी चाहिए। हंसी का अमल के लिए रोना नहीं है, हंसी का अमल के लिए रोना नहीं है। Nothing will go on record except only सर, निशिकांत दुबे। मैं सभापति महोदय, देखिए मेरा समय ये लोग बहुत खा रहे सर। जातिगत जनगणना की बात कर रहा था। सोनिया गांधी जी ने कहा कि जातिगत जनगणना संविधान के दायरे में नहीं है, हम इसका विरोध करते हैं। चिदंबरम साहब ने कहा, मैं 2011 की बात कर रहा हूं, चिदंबरम साहब ने कहा कि जातिगत जनगणना जो है इस देश को डिवाइड करेगी। प्रणब मुखर्जी जी लीडर थे, उन्होंने कहा कि जातिगत जनगणना 1931 के बाद से नहीं हुई है, किसी कीमत पर नहीं होगा। और अंत में मनमोहन सिंह जी ने तो और भी रिकॉर्ड तोड़ दिया सर। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार रहे या जाए, इसी सदन हम जातिगत जनगणना नहीं करेंगे। लेकिन गोपीनाथ मुंडे, लालू प्रसाद यादव जी और नेताजी मुलायम सिंह यादव जी का मैं बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिनके प्रयास से उस वक्त की कांग्रेस सरकार को झुकना पड़ा और जातिगत जनगणना जो है हुई, जिसका कि डाटा कई एक गलतफहमियों के कारण जो है अभी तक नहीं रिलीज हुआ। और जातिगत जनगणना हमारी सरकार करा रही है और 2027-29 में वो आ जाएगा। अरे बैठ जाओ भाई। अब क्या है सर, ये फैक्ट है, ये फैक्ट है जो अब इस अमेंडमेंट पे मैं ये कह रहा हूं कि चूंकि सर्वसम्मति से सभी लोगों ने कहा सर कि सर्वसम्मति से हमने महिला रिजर्वेशन को पास किया। कल्याण बनर्जी साहब का भी आज भाषण सुना मैंने, मनीष तिवारी जी का भी सुना। ये लोग बड़े विद्वान हैं सर। हमारे यहाँ पीपी चौधरी साहब ने भी बयान दिया। ये भारत का संविधान है जो बाबा साहब अम्बेडकर का, और हमने 2023 के एक्ट के बाद आर्टिकल 334A बनाया और 334 ये कहता है सर कि डिलिमिटेशन जो है वो जब लिया जाएगा तो रिलीवेंट फिगर होगा फर्स्ट सेंसस टेकन आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 106th अमेंडमेंट एक्ट 2023। पॉपुलेशन को क्राइटेरिया बनाया जाएगा। ये हम आप सबों ने पास किया सर। अब पॉपुलेशन को यदि क्राइटेरिया मानेंगे, यदि आप ही की बात सही, और सबों ने पास किया है, इसमें भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, टीएमसी, डीएमके, समाजवादी पार्टी, जितना पार्टी है सब इसके दोषी हैं। उनके हिसाब से लिख लीजिए मेरी बात, क्योंकि आप अमेंडमेंट तो नहीं कर रहे हो, आप कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज तो नहीं करने दे रहे हो, आप तो विरोध कर रहे हो। यूपी में सीट होगी 87, जो पॉपुलेशन है, जो 2011 का सेंसस है, निशिकांत जी जो आपने पेश किया, उनको एड्रेस करिए। सभापति महोदय जो इन्होंने पेश किया, और आज जो 2011 का सेंसस है, मैंने तो 2026 का सेंसस लिया ही नहीं है। मैं 2011 के सेंसस के आधार पर कर रहा हूं। आप उनको यूपी में सीट होगी 87, बिहार में सीट होगी 47, महाराष्ट्र में सीट होगी 49, वेस्ट बंगाल में सीट होगी केवल 38, मध्य प्रदेश में सीट होगी 34, राजस्थान में सीट होगी 32, तमिलनाडु में सीट होगी, जो इतना हंगामा कर रहे हैं काला कपड़ा पहन के, केवल और केवल 29, गुजरात में होगी 28, कर्नाटक में होगी 26। 1952 में जब डिलिमिटेशन आयोग बना तो डिलिमिटेशन आयोग ने कहा कि इस तरह से हम किसी भी एरिया का परिसीमन नहीं कर सकते। आपको पता है कि डिलिमिटेशन आयोग के रिकमेंडेशन के आधार पर कांग्रेस ने सारे फेडरल स्ट्रक्चर को तार पर तार रख दिया, पूरा संविधान संशोधन कर दिया, और 1956 का स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट डिलिमिटेशन एक्ट के आधार पर बना। बंगाल की कुछ जगह बिहार में आ गई और बिहार की कुछ जगह बंगाल में चली गई, आंध्र की कुछ जगह केरल में चली गई, केरल की कुछ जगह आंध्र में चली आई, तमिलनाडु की कुछ जगह जो है बेंगलोर में चली आई, कर्नाटक में चली गई, और कर्नाटक की कुछ जगह वहां चली गई, और आज भी महाराष्ट्र जो है बेलगांव की लड़ाई लड़ रहा है। यह डिलिमिटेशन आयोग के कारण हुआ, और उन्होंने तय कर दिया कि टोटल जो हमारे एमपी होंगे 489 होंगे। डिलिमिटेशन आयोग का यदि रिपोर्ट प्रेमचंद्रन जी आप पढ़ लीजिएगा तो उन्होंने कहा कि 526 लोग होने चाहिए, लेकिन इंदिरा जी ने, नेहरू जी ने यह तय कर दिया कि न 489 होगा। उन्हीं की बेटी इंदिरा जी ने यह 1973 का 31वां संविधान संशोधन विधेयक लेकर आया हूं,
डिलिमिटेशन आयोग 1971 में बन गया। डिलिमिटेशन आयोग ने कहा कि टोटल सीटें जो है 603 होनी चाहिए। उन्होंने कहा तुम कौन तय करने वाले थे? अभी बड़ा एकदम ट्रांसपेरेंसी की बात कर रहे थे कि आप तो अपना जज बना लेंगे, आप अपना एमपी बना लेंगे। मुझे लगता है कि 1952 से लेके ये जो है पूरा लीडर ऑफ द अपोजिशन से पूछकर जो है अपना आयोग बनाते रहे। उन्होंने कहा संविधान संशोधन करके कि नहीं, 525 से 585 सीट होगा। और उन्होंने तय कर दिया कि उत्तर प्रदेश में कितनी सीट होगी, मध्य प्रदेश में कितनी सीट होगी, गुजरात में कितनी सीट होगी, महाराष्ट्र में कितनी सीट होगी। सर ये तय कर दिया। आज आप हमको भाषण देने की बात कर रहे हो। दूसरी बात सर, ये जो झूठ की दुकान है, दोनों बहन भाई को मैंने बहुत पढ़ा। मैं आपको बताऊं कि ये 44वां संशोधन लेकर मैं आया हूं 1976 में, जब पूरे सारे नेताओं को जेल में भेज दिया कांग्रेस ने, तो 76वां संशोधन 1976 में 44वां संशोधन हुआ। संशोधन क्या हुआ? लोकसभा 6 साल के लिए, और प्रेएम्बल में, संविधान बस 2 मिनट में खत्म कर रहा हूं, और प्रेएम्बल में सेकुलर शब्द और सोशलिस्ट शब्द जोड़ दिया उन्होंने। उसका भाषण देते हुए श्रीमती गांधी ने कहा कि माइनॉरिटी के लिए हम 1920-21 से लड़ रहे हैं, और जिस मोतीलाल नेहरू कमेटी की रिपोर्ट उन्होंने कही 1929 की, 1930 की जो रिपोर्ट है, उसको इसमें जो है खूब उन्होंने कोट किया सर। उन्होंने कहा कि मोतीलाल नेहरू ने मुसलमानों को प्रोटेक्शन देने के लिए फंडामेंटल ड्यूटीज एंड फंडामेंटल राइट्स जो है कांग्रेस वर्किंग कमेटी में 1929 में, 1930 में, 1931 में, 1932 में पास किया। और हमारा जो बेस है वो बेस ये है कि हमको मुसलमान के आधार पर राजनीति करनी है, मुसलमानों को संरक्षण देना है, मुसलमानों को रिजर्वेशन देना है, उनके रिप्रेजेंटेशन को बढ़ाना है। और इसी कारण से डिलिमिटेशन आयोग के, केवल 1 मिनट सर, जब डिलिमिटेशन आयोग का रिपोर्ट आया 1976 में, उसको भी काट पीट करके इसी पार्लियामेंट में 8 सीटें मुसलमानों के लिए जबरदस्ती इसी कांग्रेस सरकार ने बढ़ाई। इसीलिए मेरा आपके माध्यम से इस सारे अपोजिशन से आग्रह है कि साउथ इंडिया के साथ अन्याय नहीं करिए, महिलाओं के साथ अन्याय नहीं करिए। इस देश में इस पार्लियामेंट की जो भूमिका है उसके वर्चस्व को कायम रहने दीजिए, पार्लियामेंट में लोगों का विश्वास रहने दीजिए। और माननीय मोदी जी जो 33% रिजर्वेशन महिलाओं को देना चाहते हैं 2029 में लागू करने के लिए, इस बिल का समर्थन करिए। आपने मुझे समय दिया। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत। श्री राजकुमार छब्बेवाल जी, श्री मियां अल्ताफ अहमद साहब। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुझे टाइम देने के लिए। आज जो ये बिल यहाँ पे लाई गई, इस बिल ने हम सबको हैरान कर दिया कि आज से पहले 2024 में ये बिल यहाँ पे पेश की गई, पास की गई, और तमाम पार्टियों की यूनानिमस डिसीजन था उनका इस बिल को पास करने के लिए। अब दोबारा इस बिल को यहाँ लाने का मतलब, मुझे यकीन है कि होम मिनिस्टर जब जवाब देंगे तो वो हमें बताएंगे कि आज दोबारा इस हाउस का स्पेशल सेशन 3 दिन के लिए क्यों बुलाया गया। सिर्फ 1 महीने पहले सेशन ख़त्म हुआ, उस वक्त ये बिल पेश कर सकते थे। जुलाई में एक दूसरा सेशन आने वाला था, ये बिल उसमें पेश कर सकते थे। लेकिन मुझे लगता है कि सिर्फ वेस्ट बंगाल के इलेक्शन और तमिलनाडु के इलेक्शन के लिए लोगों को एक दोबारा इस वीमेन के नाम पे दोबारा उनको अट्रैक्ट करने के लिए, वोट लेने के लिए आज ये एक्सरसाइज करनी पड़ी, जिसके लिए आज कोई मौजून वक्त भी नहीं था और जिसकी कोई ज़रूरत भी नहीं थी। और ख़ास तौर पे जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं, उन्होंने रिक्वेस्ट की थी हुकूमत से कि आज ये सेशन बुलाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ये बिल पास करनी है, अगर आप इसको पास करवाना चाहते हैं, तो जुलाई में सेशन आ रहा है, आप उसमें इसको पास कर लीजिए। लेकिन अपोजिशन की बात को भी हुकूमत ने नहीं सुना। इससे पहले जब भी पार्लियामेंट के इलेक्शन इजलास हुए हैं तो अपोजिशन की बात को सुना गया है, लेकिन इस मामले में
हुकूमत ने अपोजिशन की बात को भी नहीं सुना। हम यहाँ पे एक बात का जरूर एप्रीहेंशन है ऑनरेबल स्पीकर कि इससे पहले जम्मू कश्मीर में डिलिमिटेशन हुआ, आसाम में हुआ, वहाँ पे डिलिमिटेशन के नाम पे तबाही मचाई गई। वहाँ कोई मेरिट नहीं देखा गया कि कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी बनानी है, कौन सी रिजर्व करनी है, क्या करना है। जो कुछ भी किया गया वो लोगों से पूछ के नहीं किया गया। हालत ये थी कि कमीशन का जो दफ्तर है वो भी दिल्ली में था, वो श्रीनगर में या जम्मू में उस डिलिमिटेशन कमीशन का ऑफिस भी नहीं गया। कमीशन सिर्फ 2 दिन के लिए जम्मू कश्मीर में गया था। आज जो आप डिलिमिटेशन का कानून ला रहे हैं, हमें इसके लाने में कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको वेलकम करते हैं। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि अगर आपको डिलिमिटेशन करनी है तो फिर वैसी मत कीजिए जो आपने आसाम में और जम्मू कश्मीर में की है। आप डिलिमिटेशन करना चाहते हैं तो मैं सर 1 मिनट ले लूं। आप डिलिमिटेशन करना चाहते हैं तो उस डिलिमिटेशन जो है उसको करने वाले लोग जो हैं, पहले उनकी क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए, पहले उनके बारे में डिस्कशन होनी चाहिए। अपोजिशन को उसके साथ आपको लेना है और आपको देश को ये दिखाना है, बताना है कि हमारी हुकूमत जो है वो एटलीस्ट डिलिमिटेशन के मामले पे कंप्रोमाइज नहीं करेगी। इसी वजह से आज सर, इसी वजह से अगर डिफरेंट आवाजें इसके खिलाफ आ रही हैं, डिलिमिटेशन के खिलाफ, वो इन्हीं खदशात की बिना पे आ रही हैं। और हम हुकूमत से ये कहते हैं कि इन खदशात को दूर करना पड़ेगा। अगर आपने डिलिमिटेशन करना है, अगर आप इस तरह जो आप जल्दी में आप डिलिमिटेशन करना चाहते हैं, आप ये वीमेन रिजर्वेशन बिल दोबारा लाना चाहते हैं, इसके साथ हम साथ नहीं दे सकते। और हम ये कहना चाहते हैं, हमारा ये कहना है कि जो कुछ भी हो वो मेरिट पे हो, इंसाफ से हो और पॉपुलेशन के हवाले से हो। बहुत बहुत शुक्रिया। सुश्री प्रिया सरोज जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आज आपने इतने महत्वपूर्ण विषय पर मुझे बोलने का अवसर दिया। अध्यक्ष महोदय, लोकतंत्र में सबसे बड़ी जिम्मेदारी केवल कानून बनाना नहीं होता, बल्कि सुरक्षित करना होता है कि कानून के पीछे की नीतियां भी उतनी साफ और ईमानदार हो। अध्यक्ष महोदय, जल्दबाजी में लिए फैसला इतिहास में गलत बन जाते हैं, सोच समझ कर लिया फैसला देश की तकदीर बन जाती है। आज इस सदन में मैं उस आधी आबादी की आवाज़ बनकर खड़ी हूँ जिसे लोकतंत्र ने हमेशा ताकत को प्रतीक बनाया है, लेकिन जब अधिकार देने की बात आती है तब सरकार उन्हें शतरंज की गोटियों की तरह इस्तेमाल करती है। अध्यक्ष महोदय, हम सब महिला आरक्षण बिल के सपोर्ट में थे, हैं, रहेंगे, कोई इफ एंड बट की बात नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि क्या यह बिल सच में महिलाओं को सशक्त करने के लिए है? क्या महिलाओं के नाम पर कुछ राजनीतिक उद्देश्य को पूरा करने के लिए है? अध्यक्ष महोदय, हक की बात कही मगर शर्तों में उलझा दिया, महिलाओं के नाम पर सारा एजेंडा ही बदल दिया। नीतियां अगर साफ होती हक कब का मिल जाता, आपने भविष्य कहकर उनका आज ही टाल दिया। अध्यक्ष महोदय, जो 3 बिल सदन में लाए गए हैं उन्हें जिस तरह से वुमेन रिजर्वेशन के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है, आज असल में वो इस बिल के जरिए देश के राजनीतिक नक्शे, रिप्रेजेंटेशन, पावर स्ट्रक्चर को बदलने की कोशिश की जा रही, वो भी महिलाओं के नाम पे। देखिए टाइमिंग, देखिए आप, राज्य के चुनाव से ठीक पहले स्पेशल सेशन बुलाया गया, तो ये कोइंसिडेंस नहीं, कैलकुलेशन कहते हैं अध्यक्ष महोदय से। इस बिल में बहुत सारी समस्या है, जैसे आर्टिकल 82 अमेंडमेंट, महिला आरक्षण के नाम पर डिलिमिटेशन को सरकार की मर्जी पर छोड़ देना। पहले हर सेंसस के बाद यह प्रक्रिया अनिवार्य थी, नए बिल के बाद अब सरकार जब चाहे तब कर सकती है। दूसरी बात, पुराने आंकड़ों से नई सीटों तक तय करना रास्ता खोल दिया गया है, यानी 2011 के जैसे सेंसस के आधार पर 2029 के चुनाव कराया जाएगा। इस पे 2 लाइन कहना चाहूंगी। पुरानी आंकड़ों से नया इतिहास नहीं लिखा जाता, सच्चाई छुपाकर लोकतंत्र चला नहीं जाता। तीसरी बात, लोकसभा की सीट 850 तक बढ़ाने का प्रस्ताव है, इससे कुछ राज्यों का प्रभाव बहुत बढ़ सकता है और क्षेत्र असंतुलन पैदा हो सकता है। चौथा, महिलाओं को तुरंत आरक्षण नहीं दिया जा रहा, उससे डिलिमिटेशंस लिंक किया जा रहा है, यानी अधिकार अभी नहीं मिलेगा, पहले सीटों का नक्शा बदला जाएगा। पांचवा, पूरी प्रक्रिया को निरंतर संसद यानी सरकार के हाथ में है, मतलब सरकार जब चाहे कोई भी
सेंसेस ले सकती है, कभी भी डिलिमिटेशन कर सकती है, मतलब सरकार अपनी मनमर्जी करेगी। अध्यक्ष महोदय, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जब संविधान बनाते समय यह स्पष्ट कह दिया था कि भारत का जो ढांचा वो फेडरल रहेगा, जहां केंद्र और राज्य दोनों की भूमिका संतुलित रहेगी। लेकिन आज जो प्रस्ताव आया है वह उसी संतुलन को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। डिलिमिटेशन के बाद कुछ राज्यों का प्रभाव डिस्प्रोपोर्शनेट तरीके से बढ़ सकता है, जहां इसी तरह उत्तर और दक्षिण का संतुलन और राजनीतिक तनाव भी बढ़ सकता है। नारी शक्ति के सम्मान को भी सियासत में तोला गया, हक के सवाल को तारीखों में टाला गया, डिलिमिटेशन के नामों पर नक्शा बदला जा रहा है और इसे महिला आरक्षण का चेहरा बताया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, सबसे महत्वपूर्ण विषय है सोशल जस्टिस। आज देश की लगभग 40% आबादी ओबीसी समुदाय से आती है, लेकिन इस बिल में ओबीसी महिलाओं के लिए कोई स्पष्ट सब कोटा नहीं है। महोदय, हम महिला आरक्षण बिल के खिलाफ नहीं है, लेकिन जो महिलाएं इसमें हर वर्ग की होनी चाहिए। मतलब अगर ये नहीं रहा तो इसका जो फायदा कुछ सीमित महिलाओं को मिलेगा। अध्यक्ष महोदय, इसमें मैं 2 लाइन कहूंगी। आधी आबादी को हक दो, पर उसकी आधी आबादी के भीतर बराबरी भी होनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, मैं ये कहूंगी, सरकार कहती है डिलिमिटेशन के बाद वुमेन रिजर्वेशन लागू किया जाएगा, पर मेरा सीधा सवाल है, अगर आज 543 सीट मौजूद है तो उन पर 33% रिजर्वेशन लागू क्यों नहीं किया जा रहा है? क्या महिलाओं का अधिकार किसी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सरसाइज का इंतजार कराया जाएगा? अध्यक्ष महोदय, हम महिला आरक्षण के खिलाफ नहीं है, हम उसके नाम पे हो रहे अप्रोच के खिलाफ है। अगर आपकी नीयत साफ है तो आप आने वाले चुनाव में 33% रिजर्वेशन लागू कीजिए, डिलिमिटेशन बाद में कराइए, लेकिन अधिकार महिला को पहले दीजिए। अध्यक्ष महोदय, कंक्लूड करे दाम में पहले मैं आपसे कहूंगी कि मैं कहना चाहती हूँ, महिलाओं को बस बोला थी 2 मिनट रुका, महिलाओं को उनका अधिकार किसी वादे या फ्यूचर प्लान के रूप में नहीं, बल्कि आज की हकीकत के रूप में मिलना चाहिए। ये सदन तभी सच्चा लोकतांत्रिक कहलाएगा जब इसमें हर वर्ग, हर समाज, हर महिला की आवाज बराबरी सुनी जाएगी। अध्यक्ष महोदय, मैं आखिरी बस इतना कहना चाहूंगी, 2023 में वुमेन रिजर्वेशन बिल सरकार और सत्ता ने मिलकर पास किया था, लेकिन अब जिम्मेदारी सरकार की लागू करने की है। मेरा साफ कहना है कि सरकार इसे ईमानदारी से जल्दी लागू किया जाए, बिना किसी राजनीतिक खेल के। सर 2 मिनट कंक्लूड कर रही हूँ मैं। कुल बात आ गई। सर 2 मिनट आ गई। हक की बात, मैं सर इतना कह रही हूँ, हक की बात है तो उसे आज निभाइए, वादों के पीछे सच और मत छुपाइए, नारी शक्ति के नाम पर खेल खेलना बंद कीजिए, जो वादा किया हक का उसे तुरंत लागू कर दिए। जय भीम, जय समाजवाद। श्रीमती अन्नपूर्णा देवी। धन्यवाद आदरणीय सभापति महोदय। आज आपने इस महत्वपूर्ण विषय पर भारतीय नारी शक्ति के सम्मान और समान भागीदारी से जुड़े इस विषय पर बोलने का अवसर दिया। सभापति महोदय, नारी शक्ति वंदन अधिनियम को प्रभावी बनाने के लिए सरकार द्वारा जो 3 विधेयक लाए गए हैं, मैं उनके पूर्ण समर्थन में बोलने के लिए खड़ी हूँ। महोदय, पंख मिले जब नारी को, छू लेती है वो आसमान, उसकी उड़ान में बसता है देश का अभिमान। महोदय, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यह विश्वास और अधिक सुदृढ़ हुआ है कि नारी शक्ति केवल विकास की भागीदार नहीं है। రిజర్వేషన్ అమలుకు యూటీ సవరణ బిల్లు మహిళా చట్టంలో మార్పు కోసం రాజ్యాంగ సవరణ బిల్లును ప్రవేశపెట్టింది. మహిళా చట్ట సవరణపై అధికార ప్రతిపక్షాలు ఏకాభిప్రాయాన్ని వ్యక్తం చేసిన డీలిమిటేషన్ విషయంలో ఢీ అంటే ఢీ అన్నట్టుగా వాదనలు జరుగుతున్నాయి. ఇక మహిళా రిజర్వేషన్ బిల్లును డీలిమిటేషన్ కు లింక్ పెట్టడంతో అధికార విపక్ష సభ్యుల మధ్య మాటల యుద్ధం జరుగుతోంది. ఈ బిల్లులపై ఇవాళ కూడా చర్చను కంటిన్యూ చేస్తోంది కేంద్రం. వీటిని విపక్షాలన్నీ తీవ్రంగా వ్యతిరేకిస్తున్నాయి. రాజ్యాంగ సవరణ బిల్లును ఇతర బిల్లులతో కలిపి చర్చకు ఎలా అనుమతిస్తారని ప్రశ్నిస్తున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలోనే మరి కాసేపట్లో బిల్లుల ఆమోదానికి లోక్సభలో ఓటింగ్ జరగనుంది. అయితే వీటిలో రాజ్యాంగ సవరణ బిల్లు ఆమోదానికి 3/2 మెజారిటీ తప్పనిసరి. మోడీ సర్కార్కు అందుకు అవసరమైన సంఖ్యాబలం లేని నేపథ్యంలో బిల్లు ఎలా గట్టెక్కుతోందన్నది ఆసక్తికరంగా మారింది. దాంతో కాసేపట్లో జరిగే ఓటింగ్పై సర్వత్రా తీవ్ర ఉత్కంఠ నెలకొంది.
ప్రస్తుతం లోక్సభలో 540 మంది ఎంపీలున్నారు. ఎంపీలందరూ సభకు హాజరైతే బిల్లు ఆమోదానికి 360 మంది సభ్యుల మద్దతు అవసరం. ఎన్డీఏకు 293 మంది, 240 మంది బీజేపీ ఎంపీలు, 16 మంది టీడీపీ ఎంపీలు, 12 మంది జేడీయూ ఎంపీలున్నారు. అంటే సభలో 54% బలముంది. ప్రతిపక్ష కూటమికి 233 మంది ఎంపీలున్నారు. అందులో కాంగ్రెస్కు 98 మంది ఎంపీలు, సమాజ్వాద్ పార్టీకి 37 మంది ఎంపీలు, టీఎంసీకి 28 మంది ఎంపీలు, డీఎంఏకు 22 మంది ఎంపీల బలముంది. అలాగే 7 స్వతంత్ర ఎంపీలు ఎన్డీఏ, ఇండియా కూటములకు చెందిన వైసీపీ, ఎంఐఎం, శిరోమణి వంటి పార్టీలకు 7 సభ్యుల బలముంది. సభకు హాజరైన పక్షంలో 360 మంది ఎంపీలు మద్దతిస్తే ఈ మహిళా కోటా డీలిమిటేషన్ బిల్లులు పాస్ అవుతాయి. ఎన్డీఏకున్న బలం 293, అంటే మరో 67 మంది సభ్యుల మద్దతు అవసరం. అంటే ఈ బిల్లుకు ప్రతిపక్షాల మద్దతు తప్పనిసరి. ఓటింగ్లో పాల్గొనకున్నా, క్రాస్ ఓటింగ్ జరిగినా, సభకు గైర్హాజరైన ఈ మ్యాజిక్ ఫిగర్ అందుకు అనుగుణంగా తగ్గుతోంది. ఈ కోణంలో సమాజ్వాదీ, తృణమూల్, కాంగ్రెస్, డీఎంకేల్లో ఏవేవి 2 పార్టీలు గైర్హాజరైతే బిల్లు ఆమోదం కేంద్రానికి సులువవుతోంది. जो बातें उठाई जा रही हैं, जो आशंकाएं व्याप्त करके, आशंका जाहिर करके जो एक अव्यवस्था फैलाई जा रही है और इस ऐतिहासिक निर्णय को ये रोकने का काम कर रही है, तो ये हमने देखा कि ये इसी तरह ये नहीं चाहते हैं कि महिलाओं को उसका लाभ मिले, महिलाओं को जो आधी आबादी है, आधी आबादी को उसका हक मिले, और ये जानबूझकर इस तरह की अव्यवस्था, इस तरह के ये बाधा उत्पन्न करना चाहती हैं। महोदय, जब स्पष्ट रूप से जब इन्हें आश्वासन इन्हें दिया गया, तो फिर ये देश की जनता को ये गुमराह क्यों करना चाहती है? तो सिर्फ चूंकि इनकी मंशा साफ है, जिस तरह पहले इन्होंने महिलाओं को आरक्षण नहीं देना चाहती थी और स्पष्ट इन्होंने कहा था, तो यही इच्छा शक्ति आज भी दिख रहा है कि वो कहीं न कहीं इसको फिर से ये लटकाना चाहते हैं, ये उन्हें अवसर देना नहीं चाहते। महोदय, आज यह केवल एक विधेयक पर चर्चा का अवसर नहीं है, बल्कि उस गौरवशाली यात्रा का एक ऐतिहासिक पड़ाव है, जहां भारत की नारी शक्ति ने सदियों के संघर्ष, साधना और अटूट संकल्प के बल पर अपने अधिकारों की दिशा में एक स्वर्णिम अध्याय रचा है। महोदय, यह विश्वास है जिसने देश को एक अनुभूति दी, यह कि नियत साफ हो, नीति स्पष्ट हो, तब दशकों से रुके हुए कार्य भी पूर्ण होते हैं, और यही भावना आज जन जन के मन में है। तभी तो मोदी है तो मुमकिन है के रूप में प्रतिबिंबित होते भी हैं। और महोदय, अगर हम देखें तो वैश्विक परिप्रेक्ष्य में आज दुनिया में महिला सांसदों की औसत भागीदारी लगभग 27% है, और ऐसे समय में नारी शक्ति वंदन अधिनियम के माध्यम से 33% भागीदारी सुनिश्चित करके भारत एक नया ग्लोबल स्टैंडर्ड स्थापित करने जा रहा है। यह आंकड़ा भारत के लोकतंत्र की परिपक्वता, उसकी दूरदृष्टि और उसकी समावेशी सोच का सशक्त प्रमाण है। आज दुनिया देख रही है कि भारत केवल अपनी बेटियों के सशक्तिकरण की बात नहीं करती, बल्कि उन्हें नेतृत्व सौंपने का सामर्थ्य भी रखता है। यह महज एक संयोग नहीं, बल्कि मोदी सरकार की इच्छा शक्ति का प्रमाण है कि नारी शक्ति का सम्मान हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। महोदय, 3 दशकों तक हमारी माताओं और बहनों ने नीति निर्माण में अपने अधिकार की लंबी प्रतीक्षा की। इस दौरान अनेक समितियां बनी, कई विधेयक सदन के पटल पर रखे गए, किंतु इच्छा शक्ति के अभाव में वे कभी कानून का रूप नहीं ले सकी। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यह स्पष्ट संदेश दिया गया कि नारी सशक्तिकरण केवल घोषणा नहीं, बल्कि एक ठोस और समयबद्ध प्रतिबद्धता है। महोदय, यदि हम इतिहास के पन्नों को पलट कर देखें, तो यह स्पष्ट होता है कि संविधान निर्माण के समय भी महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने का प्रश्न हमारे राष्ट्र के चिंतन का हिस्सा रहा है। संविधान सभा में हंसा मेहता, दुर्गाबाई देशमुख और राजकुमारी अमृत कौर जैसी सशक्त महिलाओं ने अपनी सक्रिय उपस्थिति और विचारों से यह सिद्ध किया कि भारतीय नारी केवल सहभागी ही नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माण की दिशा निर्धारित करने वाली शक्ति भी है।
इसी दिशा में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में नारी शक्ति वंदन अधिनियम के रूप में एक ऐतिहासिक और निर्णायक पहल की गई है, जो भारतीय लोकतंत्र में महिलाओं की निर्णय निर्माण प्रक्रिया में प्रभावी और सम्मानजनक भागीदारी सुनिश्चित करने की दिशा में एक सशक्त कदम है। महोदय, एक जनप्रतिनिधि होने के साथ साथ आज जब मैं एक महिला के रूप में राजीव जी तो बैठ के बात करें, इस सदन में खड़ी हूं, तो यह क्षण मेरे लिए केवल राजनीतिक नहीं बल्कि अत्यंत भावनात्मक भी है। लगभग 3 दशक पहले जब मैं अपने राजनीतिक जीवन में कदम रखी थी, तब गांव में महिलाओं, बहनों और बेटियों से जब भी संवाद होता था, तब उनकी बातों में ढेरों आकांक्षाएं और सपने झलकते थे और मैं सोचती थी कि कैसे हम उन्हें अपनी नीतियों में समाहित कर पाएंगे। महोदय, लेकिन पिछले 12 वर्षों में हमने देखा कि धरातल पर एक परिवर्तन होते हमने देखा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी पहल शुरू की गई और जब उस समय की तुलना मैं वर्तमान से करती हूं, तो महिलाओं के जीवन में आज आमूलचूल परिवर्तन हुआ है और देश की करोड़ों बहनों को सुरक्षा, सुविधा और सम्मान का वह कवच दिया है, जिससे आज वे आत्मनिर्भरता के नए आसमान छू रही हैं। यह वुमेन लेड डेवलपमेंट का यह युग है जहां नारी नेतृत्व स्वयं परिवर्तन की दिशा तय कर रही है। महोदय, पंचायत से पार्लियामेंट तक परिवर्तन के केंद्र में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का यह दूरदर्शी नेतृत्व रहा है, जिसने महिलाओं को केवल सशक्त करने की बात नहीं की बल्कि उन्हें विश्वास, अवसर और मंच प्रदान किया है। महोदय, यह सशक्तिकरण केवल प्रतिनिधित्व तक सीमित नहीं है, इसकी मजबूत नींव स्वास्थ्य, पोषण और वित्तीय समावेशन पर भी टिकी है। हमारी सरकार ने महिलाओं को वोट बैंक नहीं माना बल्कि उन्हें भारत की विकास यात्रा का विजन बैंक बनाया है। 2 मिनट। आज हमारी बेटियां स्टेम के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर अपनी प्रतिभा का परचम लहरा रही है। हमारी नमो ड्रोन दीदी पहल के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं भी नई तकनीकों को अपनाकर आत्मनिर्भर बन रही है और उसी के साथ मिशन शक्ति के तहत कई कार्यक्रम, 1 स्टॉप सेंटर, फास्ट ट्रैक कोर्ट और 181 हेल्पलाइन जैसी व्यवस्थाएं 24/7 महिलाओं की सुरक्षा भी सुनिश्चित कर रही है। लेकिन यह बहुत ही खेद की बात है कि इस ऐतिहासिक बदलाव का जहां उत्सव पूरा देश, हमारी बहनें मनाने को तैयार है, वहां ये प्रतिपक्ष के लोग आज भी इसे अटकाने लटकाने पर लगे हैं। महोदय, मैं पंचायती राज की अगर बात करूं, पंचायती राज संस्थाओं में भी पहले ही यह साबित कर दिया है कि जब महिलाओं को निर्णय और निर्माण में स्थान मिलता है तो परिणाम अधिक संवेदनशील, समावेशी और प्रभावी होते हैं और उनके नेतृत्व में स्वच्छता, सुरक्षित पेयजल और प्राथमिक स्वास्थ्य जैसी मुद्दों को प्राथमिकता मिली है, जिससे जनजीवन में वास्तविक परिवर्तन आया है। माननीय प्रधानमंत्री जी का स्पष्ट संदेश है कि 21वीं सदी भारत की है और यह सदी महिलाओं के नेतृत्व की सदी है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम इस सदी के सबसे बड़े निर्णय में से एक है और ये सिर्फ 1 मिनट और बस 1 मिनट में समाप्त करूंगी महोदय। और ये माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा हमेशा ये सिर्फ एक वादा नहीं है बल्कि वैधानिक मार्ग भी प्रशस्त किया गया है और मोदी सरकार की गारंटी का मतलब गारंटी पूरा होने का गारंटी भी है। महोदय, जब सत्ता पक्ष की नीति और विपक्ष की सहमति एक बिंदु पर मिलती है तब इतिहास रचा जाता है और आज इस युगांतरकारी निर्णय के लिए हम पक्ष विपक्ष के भेदभाव को मिटाते हुए सभी सांसदों को, हम महिला सांसदों से, सभी सम्मानित सांसदों से यह आग्रह करना चाहेंगे कि आज सभी भेदभाव को मिटाते हुए इस युगांतरकारी निर्णय में आप भी अपनी निर्णायक की भूमिका में रहे और नारी शक्ति वंदन अधिनियम यानी महिलाओं की जो पेश करके औरत वर्ग ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਭੀਮਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਮਨ ਇੰਪਾਵਰਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾ ਕਮਾਲ ਯੋਗਦਾਨ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈਂਪੀਅਨ ਆਫ ਵਿਮਨ ਇੰਪਾਵਰਮੈਂਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ I measure the progress of the community by the degree of progress which women have achieved।
और स्पीकर साहब इन्ना ही नहीं, सावित्रीबाई फूले भारत की पहली महिला औरत अध्यापक बनी जिसने भारत विच पहला लड़कियां का स्कूल स्थापित किया। यह वखरी गल है कि इस महान औरत को सरकारी तौर पर बनता मान सन्मान नहीं दिता गया। मेरी तो यह भी राय है कि जदों भी ये बिल आवे इसका प्रारूप, इसका शीर्षक सावित्रीबाई फूले जी के नाम से रखा जाए। और स्पीकर साहब, मैनू तो यह समझ नहीं आती कि एडी की काली सी कि जी ये अमेंडमेंट बिल लैके आने पे। द गवर्नमेंट शुड हैव कन्वीन्ड एन ऑल पार्टी मीटिंग आफ्टर द एंड ऑफ करंट साइकिल ऑफ असेंबली इलेक्शंस टू डिस्कस द प्रपोजल्स विद द ऑपोजिशन, allowing time for public debate, and then they should have brought these amendment bills into the monsoon session parliament. So there is simply no justification except for publicity and gaining electoral benefits out of it. सभापति साहब, सेंसस ते मैं समझदा कि आज 2021 दे विच सेंसस हो जाने चाहिए सी। 5 साल बाद हुण शुरू होया और सेंसस शुरू जरूर होए है, परंतु इन्हां 5 सालों के 10 करोड़ तो भी ज्यादा जो लोगों का नुकसान होया, जिन्हां ने फूड सिक्योरिटी बिल दे विच इंटाइटलमेंट होनी सी, ये सब तो बड़ा मैं समझदा कि नुकसान है। और मैं ये समझदा कि एक प्रोपेगेंडा चल रहा, देयर इज प्रोपेगेंडा दैट कास्ट सेंसस विल डिले द पब्लिकेशन ऑफ सेंसस 2027, which is not true. The government's real intention is now to further delay and derail the census. So सभापति जी, मैं समाप्त करना चाहना कि मैं तो बोलते हुए पहला बोलते हुए मैं साडे पंजाब दे एक महिला संसद ने कहा कि 543 सीटां दे विच जिहड़ी रिजर्वेशन है, विमेन रिजर्वेशन होनी चाहिए है, वो सारी विरोधी धिर यही कहती है। पर मैं उन्होंने ये जरूर कहना चाहना कि वो पहला भी बीजेपी सरकार दे विच उन्हां दे अलायंस दे विच रहे आ, और ये उन्होंने उदों क्यों नहीं करवाया। और दूसरी गल मैं उन्होंने कहनी चाहना, कृपया समाप्त करें। इंडिपेंडेंस के खिलाफ है, 1000-1500 रुपए की गल कर रहे हैं विमेन। सो इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस जी बहुत जरूरी है, जी कि इन्होंने अपनी सरकार दे विच हुंदे होए कदे भी इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस की गल बात आ गई। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। वर्षा गायकवाड़ जी, सुश्री वर्षा गायकवाड़। महोदय, या ऐतिहासिक आणि महत्त्वपूर्ण अशा 131व्या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आणि डिलिमिटेशन ॲक्टवरती बोलण्यासाठी सन्माननीय अध्यक्ष महोदय मी उभी आहे। हे केवळ एक विधेयक नसून आज जर आपण बघितलं तर अर्धी लोकसंख्या असलेल्या पूर्ण महिलांचं लक्ष आज या संसदेकडे लागलेलं आहे, कारण या संसदेच्या माध्यमातून त्यांना न्याय मिळेल अशी त्यांना अपेक्षा आहे। मी या ठिकाणी एक गोष्ट सांगू इच्छिते की जे लोक समजतात की भारतीय स्त्री नेतृत्वासाठी तयार नाही, त्यांना मी सांगू इच्छिते की ही जी जमीन आहे, ही जी भूमी आहे, ही क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले, राजमाता जिजाऊ, पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर, माता रमाई यांच्या पावन स्पर्शाने आलेली आहे। आणि ही जमीन जी आहे, ही भूमी केवळ फक्त महिला घर चालवते असंच नाही, तर महिला राज्य चालवते, महिला देश चालवते, महिला युद्ध लढते, युद्ध जिंकते आणि त्याचबरोबर महिला इतिहास घडवते, हे सुद्धा आपण सगळ्यांनी पाहिलेलं आहे। 14 एप्रिलला भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांची जयंती होती। जयंतीच्या निमित्ताने मी आपल्या सगळ्यांना सांगू इच्छिते की भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी सांगितलं, महिलांचा राजकारणातील सहभाग हा केवळ अधिकार नसून खऱ्या लोकशाहीसाठी अत्यावश्यक घटक आहे। त्याचबरोबर त्यांनी सांगितलं की राजकीय सशक्तीकरण हे सामाजिक मुक्तीचे साधन आहे। आपल्याला माहिती आहे की भारतरत्न राजीव गांधी यांनी 73व्या 84व्या घटना दुरुस्तीच्या माध्यमातून महिलांना पंचायत आणि महानगरपालिकेमध्ये जे आहे म्हणजे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये जे आहे ते आरक्षण दिलं आणि महिलांना 33% त्यावेळेला आरक्षण मिळालं। 15 लाखहून अधिक महिला आणि 40% अधिक महिला ज्या आहेत त्या आज स्थानिक जे स्वराज्य संस्था आहेत त्यामध्ये प्रतिनिधित्व करत आहेत। मला आजचे जे विधेयक आलेले आहे त्या विधेयकाच्या बाबतीमध्ये बोलायचं आहे, कारण नारी शक्ती वंदन अधिनियम आणि डिलिमिटेशन यांना सलग केल्यामुळे आम्हाला या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणामध्ये याचा उद्देश काय याच्याबद्दल मोठ्या प्रमाणामध्ये साशंका होत आहे। कारण आपला राजकीय फायदा मिळवण्यासाठी किंवा विरोधकांना कोंडीत पकडण्यासाठी, बचावात्मक करण्यासाठी ते हे डिझाईन केलं गेलं नाही ना, असं मला या ठिकाणी सांगायचं आहे। नारी शक्ती वंदन अधिनियम हा खरं तर विधेयक या सभागृहामध्ये, वरच्या सभागृहामध्ये 2023लाच मंजूर झालं। काल मी ऐकलं की
सिमरन जीले तेरी जिंदगी असं कोणीतरी या सभागृहात बोललं. जर हे विधेयक त्याच वेळेला मंजूर झालं होतं तर मग 2024च्या इलेक्शनच्या लोकसभेमध्ये आणि विधानसभेमध्ये जर हे बिल लागू केलं असतं तर आज या सभागृहामध्ये ज्या ठिकाणी आम्ही या कायदे मंडळात महिला बसलेलो आहोत फक्त 543 पैकी फक्त 74 महिला नसत्या. अध्यक्ष महोदय 180 महिला निवडून आल्या असत्या आणि जे महिलांचे कायदे बनवले जातात किंवा ज्या महिलांच्या कल्याणकारी योजना बनवल्या जातात त्यामध्ये त्यांनी मोठ्या प्रमाणामध्ये प्रतिनिधित्व केलं असतं. आदरणीय खरगे साहेब असतील किंवा सोनिया गांधी असतील यांनी स्पष्टपणे हे जे विधेयक आहे हे 2024 पासून लागू करावं आणि त्याचबरोबर जे नवीन परिसीमन आहे ते लागू करावं या संदर्भामध्ये त्यावेळी सुद्धा आपली भूमिका मांडली होती. पण जेव्हा सरकारचा उद्देशच त्या ठिकाणी शुद्ध नाही आहे आणि ज्यावेळी राजकीय संधुसाधीपणा याच्यामध्ये आहे अशा वेळेला आपण बघितलं असेल की त्या बिलाची अंमलबजावणी झाली नाही. आज 5 राज्यामध्ये निवडणुका चालू आहेत. मोठ्या प्रमाणामध्ये जर आपण बघितलं तर आपण एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आणले त्यांनी दोन ऍक्ट त्या ठिकाणी आणलेले. भाजप सरकारचं तर असं आहे सन्माननीय अध्यक्ष महोदय 20/4 ते सातत्याने इलेक्शन निवडणुकांचा विचार करत असतात. देशाची जनता आणि त्या ठिकाणी देशाची दिशाभूल करत असतात. मला या ठिकाणी सांगायचंय की महिला आरक्षण दाखवून तुम्ही डिलिमिटेशनचा अजेंडा तर चालवत नाही आहात ना आणि या माध्यमातून एक अन्यायकारक आणि अपारदर्शक त्या ठिकाणची जी परिसीमन तुम्ही करण्याचं काम करत आहात त्याला आमचा विरोध आहे. हा संविधानावरचा हल्ला आहे त्याला आमचा विरोध आहे. आणि म्हणून मला या ठिकाणी सांगायचंय मी काल भाषणं खूप लोकांची ऐकली आणि त्यामध्ये सांगण्याचं काही लोकांना इतिहास पण वाचला पाहिजे, इतिहास शिकला पाहिजे, काहींचा इतिहास थोडा कमजोर असू शकतो पण मला सांगायला पाहिजे 2014 पूर्वी म्हणजे भारतीय जनता पार्टीचं सरकार येण्यापूर्वी सुद्धा 17 राज्यामध्ये 50% स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिला